Hello student, today we start the surface area and volume of solids. In previous class, class 9th, you will learn about the surface area and volume of different figures. These figures are, or the objects are, the regular solid figures or regular solid objects. What are the regular solid objects? Those objects whose shape can be defined. अब कैसे होगा, जैसे आपका एक बॉक्स है, पैकिंग बॉक्स, इसके शेप को हम डिफाइन कर सकते हैं, बट एक रॉक है उसके शेप को हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, है ना। तो इस तरीके के ये जो हमारे रेगुलर सॉलिड फिगर्स हैं, जिसमें आपने लास्ट ईयर क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, सिलेंडर, स्फीयर, इनके फॉर्मूलेज, इनका कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम फाइंड किया था। अभी हम आज इस लेक्चर में उन्हीं चीज़ों को फिर से रिपीट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अब हम जो आगे इस पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उनमें हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स होगा। प्रीवियस क्लास में आपने इंडिविजुअल शेप्स के बारे में डिस्कस किया था, लेकिन अभी हम लोग जो बात करेंगे वो कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स की बात करेंगे। तो इसके लिए हमें जो फॉर्मूलेज हैं वो हमको रिकॉल करने पड़ेंगे। तो चलिए हम लोग बात करते हैं रेगुलर सॉलिड फिगर्स के सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के लिए। तो हमारे पास जो कॉमन फिगर हमारे पास सामने आता है वो है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड कैसा शेप होता है? यदि आप इसको देखें तो ये जो शेप है, पैकिंग का एक बॉक्स है जो नॉर्मली आप घरों में देखते होंगे। दिस इज एन क्यूबॉइडल शेप। क्यूबॉइडल शेप क्या होता है? ये जो हैविंग अ 6 फेसेस, 6 फेस वाला एक ऑब्जेक्ट है जिसमें ईच फेस इज अ रेक्टेंगल। यदि हम इसके फेसेस को देखें तो ईच फेस इज अ रेक्टेंगुलर शेप। सो इन रेक्टेंगल देयर विल बी लेंथ एंड ब्रेथ। तो यदि हम बेस की बात करें तो ये लेंथ होगा, एक ब्रेथ होगा, एक हाइट होगा। देयर आर 3 डायमेंशंस इन अ क्यूबॉइड। ओके, सो इन अ क्यूबॉइड now its shape is like this. This is a cuboid whose length is L, breadth and height, and these edges, these are known as edges. They are right angle to each other. Okay, so length, breadth and height of cuboid are L, B and H respectively. So first we find the surface area of cuboid. So surface area of cuboid is how many faces? Look at again here. There are 6 faces. Opposite faces are identical. Look at this face, rectangle, and look at this face, it is a rectangle. If breadth is B and height is H, so B into H, again B into H. So there are, we can write 2 into, opposite faces are equal in area. So length into breadth, it gives the area of the base. Length into breadth gives the area of base, and multiplying by 2 it gives the area of opposite face also. Then lateral face B into H plus length जो front face है इसका एरिया कितना होगा? Length into height, so L into H. So there are 3 different faces. Their sum multiplied by 2 gives the area of the 6 faces. Now the volume of cuboid, it will be area of base into height. ये जो रेगुलर फिगर्स जिनमें बेस और उसका टॉप सेम होता है, ऐसे फिगर्स का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, और जो लेटरल फेस है वो पैरेलल है, तो ये हो जाएगा आपका L into B into H. L into B, length into breadth gives the area of base into height.
So it gives the volume. So we have surface area and volume. There is one more length which is you have read about that. That is the length of diagonal of a cuboid. So this is the diagonal. AC is the diagonal. So its length is under root of L square plus B square plus H square. So this is the length of diagonal. Length of diagonal is under root of L square plus B square plus H square. This is the longest length. This is the longest length of the cuboid. Now second is cube. Cube is what? In cube, if all these length, breadth and height becomes equal, so it becomes a cube. So each face of a cube is which type of that? It will be a square. Each face of a cube is a square. Now if length equals to breadth equals to height and it is equals to A, length, breadth and height becomes equal in a cuboid, then it becomes a cube. So surface area of cube is 6A square. A square is the area of one face and there are 6 faces, so 6A square. And volume of cube is how much? Length into breadth into height, A into A into A, it becomes A cube. Okay, so this is the volume and surface area of cube. Now there is one more figure, that is cone. That is cone and cylinder, sphere. ये भी आपने पहले पढ़ा हुआ है. अब हम देखेंगे कि आगे जो हमारा सिलेंड्रिकल शेप है, कोनिकल शेप है, स्फेरिकल शेप है, उसका सरफेस एरिया, वॉल्यूम किस तरीके से हम फाइंड करेंगे. तो ये नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखेंगे सिलेंड्रिकल शेप. तो हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो सिलेंड्रिकल शेप में है. जैसे हमारे पाइप होंगे, पाइप्स आर इन सिलेंड्रिकल शेप. हमारे कुछ पैकिंग होंगे, जैसे आप ये देख रहे हैं, दिस इज इन द सिलेंड्रिकल शेप. इसके एंड्स कैसे हैं? सर्कुलर है. यदि हम इसके एंड देखें, और एक कर्व पार्ट है, इसका कर्व सरफेस है और एक फ्लैट सरफेस है. ओके, ये सर्कुलर है तो इसका रेडियस होगा और ये इसका हाइट होगा. अब ये सॉलिड भी होते हैं और हॉलो भी होते हैं. यदि हम इसको ओपन करके देखें तो ये पैकिंग है, इसलिए ये हॉलो है ना. तो इस तरीके से ये सॉलिड सिलेंडर भी होते हैं, हॉलो सिलेंडर भी होते हैं. तो यहाँ पर सिलेंडर में हमारे पास we have 2 parameters. In cylinder there will be 2 parameters. One is radius of base and another is height. That is the height of cylinder. So if radius and height is known, we can find the surface area as well as the volume. If radius of base is R and height of cylinder is H, then there will be 2 faces. One is chord surface area. Chord surface area क्या होगा इसका? देखिए, जैसे मान लीजिए ये जो lateral faces आपको दिख रहा है, that is the chord face. यदि हम इसको इस तरीके से रैप करें तो ये इसको completely हमने रैप कर लिया है. ठीक, अब यही जो पेपर हमने रैप किया है, that is the chord surface of this cylinder. यदि हम इसको अलग करके देखें तो क्या होगा? We get a rectangular paper sheet. So the chord surface area of this cylinder is the area of this rectangular sheet. अब एरिया में हमारे पास क्या होगा? ये तो इसका सपोज ये हाइट हो गया, दिस इज द हाइट, और ये वाला पार्ट जो है इसका लेंथ होगा, दिस इज द लेंथ. एंड व्हाट इज दैट? दैट इज 2 पाई r, because that is the circumference of the circle. So circumference of the circle, if radius is r, 2 pi r, and this is the height, so chord surface area becomes 2 pi RH. So chord surface area
which is written as CSA, chord surface area of cylinder is 2 pi RH. Now there will be total surface area, so we add the area of ends. So total surface area is chord surface area plus area of ends. So what is chord surface area? 2 pi RH plus 2 into, there are two ends and both ends are circular, identical, having the same radius. So 2 into pi r square. If we take 2 pi r common, so we have H plus R. So this is the total surface area of cylinder. Okay. Now volume of cylinder is again area of base, because base and top are same and lateral face is parallel. So it is area of base. Area of base is pi r square into H. So pi r square H is the volume of cylinder. Okay. Now the next figure is the cone. नेक्स्ट फिगर क्या होगा हमारा? कोन होगा, है ना. तो अब कोन के बारे में देखिए. कोन आपने सुना होगा पहले, आइसक्रीम कोन, मेहंदी का कोन आपने देखा होगा, है ना. आइसक्रीम का कोन आपने काफी पॉपुलर है, सभी लोग आइसक्रीम खाते हैं. तो इसका शेप कुछ इस तरीके का है. ये जो एक शेप है ये कोनिकल शेप है. यदि हम इसका बेस देखें तो बेस इज अ सर्कल and another part is the lateral face, but it is in slant form. सिलेंडर में ये पैरेलल है. सिलेंडर में कैसा है? ये पैरेलल है. बेस इसका भी सर्कुलर है, इसका भी बेस सर्कुलर है, बट ये साइड लेटरल फेस पैरेलल है, बट इसका फेस कैसा हो रहा है? स्लांट फॉर्म में. और एट द टॉप इट बिकम्स अ पॉइंट. ऑल लेटरल फेस बिकम्स अ पॉइंट. ओके. तो यहाँ पर जो हमारा कोन है इसको देखें तो इस तरीके का एक शेप आपके सामने होगा. दिस इज अ कोन. ओके. ये इसका टॉप है. सपोज द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज r एंड h इज द हाइट. ये इसका हाइट होगा. ओके. बट एक लेटरल फेस आपको दिख रहा है, ये क्या होगा? जो स्लांट फॉर्म है, that is the slant height. So how many parameters are there? 3: height, radius and slant height, but they are correlated, है ना. So if radius of base of cone is r and height is h and slant height is L, so there will be a relation. If you look at this figure OAB, it is a right angle triangle. So what relation we have? L square equals to h square plus r square by Pythagoras theorem. L square equals to h square plus r square. So if any two value is known, we can get the third one. This is the use of this relation. Okay. Now the chord surface area of cone is pi r L. It is pi r L. Now the total surface area of cone is chord surface area plus area of base. Now what is chord surface area? Pi r L plus pi r square. If we take pi r common, so we have L plus r. So this is the total surface area of cone. And the next part is volume of cone. Volume of cone is 1/3 of area of base into height. अब ये आप देख रहे होंगे कि ये 1/3 क्यों किया? क्योंकि ये पैरेलल नहीं है. जो लेटरल फेस है वो
स्लांट वे में, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम ये इसका वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं। और एक्सपेरिमेंटल इससे हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं कि सेम बेस और हाइट का हमने एक सिलेंडर लिया है, होलो सिलेंडर, और एक कोनिकल वेसल लिया हुआ है। इसमें जो इसका जो वॉल्यूम है ये 3 टाइम्स इसका वॉल्यूम ऑफ कोन का 3 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगा। तो ये वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है। इसमें एक चीज और ध्यान रखना है कि अब चूंकि आपने ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ लिया है, तो ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ लिया है तो ये आपका वर्टिकल एंगल यदि गिवन है तो आप इसका ये सेम फिगर में आप देखें, यदि ये थीटा है तो ये θ/2 हो जाएगा। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं जब कोन का वर्टिकल एंगल गिवन है। वर्टिकल एंगल गिवन कैसा है, ये जो लाइन है और इस लाइन के बीच का जो एंगल है ये वर्टिकल एंगल होगा। तो इस तरीके से यदि हमको ये मालूम है और कोई एक वैल्यू मालूम है, रेडियस मालूम है, तो हम हाइट फाइंड कर सकते हैं, स्लांट हाइट निकाल सकते हैं। मान लो स्लांट हाइट मालूम है जिसको हम इजीली मेजर कर सकते हैं, और ये वर्टिकल एंगल मालूम है तो हम h और r फाइंड कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको मिल सकते हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि हमारे सिलेबस में नहीं, ये क्योंकि हमने ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ लिया है। तो ये वॉल्यूम ऑफ कोन, सरफेस एरिया and total surface area, chord surface area and total surface area. Now we come to the next figure is sphere, spherical shape, जो हमारे पास आसपास बहुत देखने को मिलते हैं। क्या क्या है हमारे पास, घर में लड्डू है ना, और बाहर क्या है, क्रिकेट बॉल, फुटबॉल जो आप खेलते हैं। तो ये दोनों बच्चों को काफी पसंद आते हैं ना, घर में खाने के लिए लड्डू हो और बाहर खेलने के लिए बॉल हो, तो मतलब सब कुछ हो जाता है। तो हम अपना नेक्स्ट जो शेप है वो है स्फीयर। तो हम स्फीयर की बात करेंगे। स्फीयर, अब देखिए हमारे पास एक एग्जांपल हमने भी लिया हुआ है और बड़ा पॉपुलर है, बॉल है, क्रिकेट बॉल, प्लास्टिक का है। तो ये स्फेरिकल शेप है, ये फिजिकली मेड है, आइडेंटिकल स्फीयर है। फुटबॉल फिजिकली मेड है, बट नेचुरली ऐसे कौन से शेप्स हैं, लेमन का आपने देखा होगा, ऑरेंजेस, इस तरीके के ढेर सारे शेप्स हमारे पास स्फेरिकल शेप में होते हैं। तो स्फीयर में हमारे पास क्या है, एक इसका रेडियस होता है। ये 3 डायमेंशनल फिगर है। जब हम इसको बोर्ड पर या अपनी कॉपी पर बनाएंगे, नोटबुक पर, तो हमको ये सर्कुलर दिखेगा, ठीक है ना। तो कई बार इसको इस तरीके से भी कर देते हैं ऐसे, तो ये एक 3 डायमेंशनल लुक दे देता है कि ये सर्कल नहीं है, दिस इज अ बॉल, टेनिस बॉल जैसा आपने एक उसका शेप दे दिया तो ये बॉल हो गया, है ना। तो ये आप इसको बेसिकली ये एक स्फीयर है, लेकिन इसको दिखाने के लिए हमने इस तरीके से एक ये बना दिया है। तो ये माने हमारे पास एक स्फीयर है। इसमें देयर विल बी सिंगल डायमेंशन, दैट इज द रेडियस। डायमीटर गिवन होगा, रेडियस निकाल सकते हैं। इफ रेडियस ऑफ स्फीयर is r, then there will be only one surface, that is the lateral surface, chord surface। तो एक ही सरफेस है, इसलिए इसको हम सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 4πr²। अर्लियर क्लास में 9th में आपने कैसे फाइंड करना है वो भी आपने किया होगा, है ना। इसके ऊपर थ्रेड को लपेटकर और इस तरीके से कैलकुलेट किया था। और सेकंड है इसका वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3πr³। तो ये फॉर्मूले आपको लर्न करने पड़ेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक सेकंड पार्ट आता है कि जैसे आप लेमन को कट कर देते हैं बीच से, तो क्या हो जाता है, वो हेमिस्फीयर में, हेमिस्फीयर किस तरीके का होगा, कुछ इस तरीके का होगा। देखिए हेमिस्फेरिकल शेप कुछ इस तरीके का होगा, है ना। व्हेन वी डिवाइड अ स्फीयर along its diameter we get a hemisphere। हमारे पास देखिए हेमिस्फीयर है, ये स्फीयर था, दिस इज अ स्फेरिकल बॉल, ओके। हमने इसको यहाँ से कट कर दिया, देन वी हैव 2 पार्ट।
ईच इज हेमिस्फीयर। ओके, अब यहाँ जब हमने इसको हेमिस्फीयर देखा तो दिस इज द हेमिस्फीयर। नाउ इट हैज टू फेसेस, वन इज कर्व्ड फेस, अनदर इज फ्लैट, सो देयर विल बी टू फेसेस। सो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर will be half of the surface area of a sphere, so this will be 2 pi r square. Now there will be total surface area, so area of base will be added, so radius is same, either base or the other part of that, so total surface area of hemisphere is 3 pi r square. 2 pi r square curved surface area plus area of base becomes 3 pi r square. Now volume of hemisphere becomes the half of the volume of a sphere, so it becomes 2 by 3 pi r cube. Okay, so now we have the formula for surface area and volume of different regular solid figures, mainly cuboid, cube, cylinder, cone, sphere, hemisphere. कुछ पिरामिड्स के भी हैं लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है। पिरामिड्स भी जो है वो रेगुलर सॉलिड फिगर्स हैं, उनको हम डिफाइन कर सकते हैं, उसके भी फॉर्मूले हैं। प्रिज्म आप देखेंगे, प्रिज्म भी एक रेगुलर सॉलिड फिगर है। अब ये फॉर्मूले आपने क्लास 9th में किए हैं, ऐसा आपने इसके क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हैं, ठीक है ना। अब हमारे पास इस साल जो हम पढ़ेंगे वो कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स पढ़ेंगे। अब कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स कैसे होगा ये देखेंगे। तो कुछ जो पार्ट हैं, कुछ इवेंट हैं जिनको हम अभी डिस्कस करेंगे और उस तरीके के कुछ क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज में भी मिलेंगे। मान लीजिए ये एक हेमिस्फीयर है ना, ये कोन है। यदि इनका बेस का रेडियस सेम है, हमने इनको ज्वाइन कर दिया तो ये क्या हो गया, एक नया शेप हो गया। इट इज नाइदर कोन नॉर हेमिस्फीयर और स्फीयर, बट इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कोन एंड sphere. Its lower part is sphere, hemisphere, and upper part is conical. अब यहाँ पर इसका वॉल्यूम हम फाइंड कर सकते हैं। इसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। नाउ इफ वी कंबाइन दैट, सो देयर सम विल बी सम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ईच पार्ट विल बी द वॉल्यूम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट होगा, है ना। अब इसका हमें सरफेस एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। मान लीजिए ये टॉय है, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। अब हमारे मन में, माइंड में पहली बात ये आती है कि हम हेमिस्फेरिकल पार्ट का टोटल सरफेस एरिया और कोनिकल पार्ट का कर दें, बट क्या हो रहा है यहाँ पर, ये जो टोटल एरिया हम ऐड नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि इसका जो बेस है कोन का और हेमिस्फीयर का, ये कंबाइंड हो गए, जो विजिबल नहीं है, जो काउंट में नहीं है, इसलिए वो पार्ट ऐड नहीं होगा। तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया है वो कैसे निकालेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन अपर पार्ट एंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ लोअर पार्ट, माने हेमिस्फेरिकल पार्ट। ओके, तो एक इस तरीके के क्वेश्चन। अब यही बात मान लीजिए सिलेंडर के साथ इसको कंबाइन करें, तो सिलेंडर के साथ मान लीजिए एक एंड को हमने हेमिस्फीयर से कंबाइन कर दिया तो एक ये शेप हो गया। अब इसका कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, वही कॉन्सेप्ट काम करेगा, क्योंकि जो बेस है इसका वन एंड और इसका बेस, ये दोनों कैसे हो गए, कंबाइंड हो गए, तो ये वाला पार्ट माइनस रहेगा, ठीक है। तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, मान लीजिए ये सॉलिड, ये ऑब्जेक्ट है, इसका हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। देखिए पहले तो एरिया ऑफ बेस होगा सिलेंडर का, फिर कर्व्ड सरफेस एरिया होगा, फिर एरिया ऑफ अपर पार्ट, एरिया कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से ये हो गया। मान लीजिए इसमें हमने एक एंड को कोन के साथ ज्वाइन कर दिया, तो अब क्या हो गया इसका सरफेस एरिया। अब ये वाला जो एरिया ऑफ बेस हमने लिया था उसकी जगह पर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ कोन आ जाएगा। ये बेस वाला पार्ट फिर जो एडजॉइन हो गया, तो जो लेटरल फेसेस हमको दिख रहे हैं उनका सम जो है वो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट होगा।
ठीक है ना। अब ये तो अभी हमने ऊपर से रखा हुआ है, मान लीजिए ये सॉलिड सिलेंडर होता, मान लीजिए एक लकड़ी का वुडन ब्लॉक है, सिलेंड्रिकल वुडन ब्लॉक, इसमें हमने कार्विंग कर दी, है ना। कार्विंग कैसे कर दी, मान लीजिए हमने इसमें ऊपर से एक जो हेमिस्फेरिकल शेप था उसको हमने इसमें कार्व कर दिया, ठीक। ये देखिए हमने इसको लकड़ी को हेमिस्फेरिकल जो शेप है वो डिप्रेस कर दिया, उतना काट के निकाल लिया, ठीक। तो अब यहाँ पर जो रेडियस था उतना ही रेडियस इस हेमिस्फेरिकल शेप का होगा। यहाँ पर क्या हो गया, यदि ये सॉलिड वुडन ब्लॉक है सिलेंड्रिकल, तो वॉल्यूम की जब बात करेंगे तो वॉल्यूम, ये जो हेमिस्फेरिकल पार्ट है इसको हमने उतना निकाल दिया, आउट कर दिया उतना वुड, तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, वॉल्यूम बिकम्स लेस बिकॉज द वुड टेकन आउट फ्रॉम दैट, बट द सरफेस एरिया इंक्रीजेज। कैसे, देखिए ये वाला एरिया ऑफ बेस, कॉर्ड सरफेस एरिया, और ये एक नया सरफेस आपको मिल गया जो पहले फ्लैट था, जो पहले कैसा था, फ्लैट था, माने इस तरीके का बंद था, अब ये अलग होके कर्व हो गया, तो एक नया हमको एरिया मिल गया, ठीक है ना। तो ये वाला अब इसका इस एरिया को हमें ऐड करना पड़ेगा, दिस गिव्स द टोटल सरफेस एरिया। फिर से देखें, कॉर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, कॉर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ बेस, ओके। अब ये हेमिस्फेरिकल हमने कार्व किया हुआ है, मान लीजिए हमने कोनिकल कार्व कर दिया, ये हॉलो होगा, यहाँ से ये वाला पार्ट जो है वो हॉलो होगा, तो जैसे हमने हेमिस्फीयर के लिए किया था वैसे कोनिकल के लिए हो जाएगा। तो ये ऐसे ढेर सारे कॉम्बिनेशन हमारे पास देखने को मिलेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो आपने कोन, सिलेंडर और स्फीयर में कंबाइन किया हुआ है, लेकिन मान लीजिए ये क्यूबॉइड में कैसे होंगे, क्यूब्स में कैसे होंगे, तो मान लीजिए ये क्यूबॉइडल शेप है, ठीक है ना। यहाँ पर हमने ऊपर एक इस तरीके का टोम बना दिया, हेमिस्फेरिकल टोम। कई बार आप देखते हैं कई बड़े हॉल्स में बीच में एक हेमिस्फेरिकल डोम होता है। तो अब हमें यदि इसका सरफेस एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया, तो हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड निकाल लेते हैं। बट हो क्या रहा है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड में ये जो पार्ट है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने ये रख दिया, तो ये जो पार्ट दिख रहा है ये तो माइनस हो गया ना, अभी हमने कैलकुलेट कर लिया, बट ये माइनस करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये हिडन हो गया, इसका भी पार्ट हिडन हो गया और ये भी हिडन हो गया। तो क्या करना पड़ेगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, क्योंकि हेमिस्फेरिकल शेप है, माइनस एरिया ऑफ बेस। क्यों, क्योंकि ये जो पार्ट है ये माइनस हो गया, क्योंकि ये पार्ट हमारे काउंट में नहीं होगा, ठीक है ना। इस फ्लैट की जगह ये कर्व्ड आ गया, ठीक है। तो इस तरीके के शेप्स हमारे साथ डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में मिलेंगे, जो हमें मतलब कैलकुलेट करना पड़ेगा। वॉल्यूम की जब बात आएगी तो वॉल्यूम में माइनस नहीं होगा, क्योंकि वो फेस हिडन हुआ है, उसका सरफेस हिडन हुआ है, सब्सटेंस हिडन नहीं हुआ है, इसलिए वॉल्यूम की जब बात आएगी तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर आएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आएगा, दोनों का सम हो जाएगा। बट सरफेस एरिया में ये जो हिडन सरफेस है, जो हमको दिख नहीं रहा है किसी भी कॉम्बिनेशन में, वो हम माइनस करेंगे और जो दिख रहा है वो ऐड करेंगे, ओके। तो आज के लिए इतना ही कि हमने डिफरेंट शेप्स देखे हुए। अब देखिए ये पेन था, ये भी अपने आप में कैसा है, सिलेंड्रिकल शेप है। यदि हम इसके इसको निकाल दें तो जो अपर पार्ट है वो लिटिल बिट कोनिकल है ना। ब्लैक बोर्ड जो है वो प्लेन फिगर है, लेकिन ब्लैक बोर्ड का जो सरफेस है वो रेक्टेंगल है, और यदि हम इसको पूरे को निकालें तो एक आपको क्यूबॉइडल शेप मिलेगा। तो इस तरीके से हमारे आसपास, जैसे हम रूम में, जिस रूम में बैठे हुए हैं, जिस रूम में पढ़ते हैं, वो क्यूबॉइडल शेप में है। तो ये ढेर सारे हमारे पास ऐसे कॉम्बिनेशन हैं जो हम डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उनमें भी आपको वो सारी चीज़ें जो अभी हमने डिस्कस की हैं वो मिलेंगी। इनके यूनिट्स का ध्यान रखना है, यूनिट सेम होने चाहिए, कहीं मीटर में है कहीं सेंटीमीटर में है, तो आप उनको पहले सिमिलर करेंगे और फिर आगे सॉल्व करेंगे। इज वन मोर कॉम्बिनेशन इन दिस फिगर, देयर इज अ टेंट, कॉनिकल टेंट। आपने सर्कस में देखा होगा, एक उसमें डबल पार्ट होते हैं, एक जो लेटरल फेस होता है वो सिलेंड्रिकल होता है और अपर पार्ट जो है वो कोनिकल होता है, लाइक दिस। जैसे ये सिलेंड्रिकल पार्ट है और ये कोनिकल पार्ट है।
तो आप देख रहे हैं कि ये जो कॉम्बिनेशन है ये एक शॉर्ट फॉर्म है उसका, ये सिलेंड्रिकल पार्ट है और ये कोनिकल पार्ट है। इन दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन ये है कि इसका जो बेस है, रेडियस इसका जो है, और कोन का जो रेडियस है वो सेम है, तभी ये कंबाइंड हो रहे हैं, है ना। तो ये इसके मान लीजिए हमें कैनवास है उसका कॉस्ट फाइंड करना है, या कितना वॉल्यूम ऑफ एयर होगा इसके अंदर वो निकालना है। ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं कि इसकी कैपेसिटी कितनी होगी बैठने की, तमाम चीज़ों के लिए ये कैलकुलेशन होते हैं। अब मान लीजिए हमें कैनवास निकालना है, यदि ये एक टेंट बनाया हुआ है जिसका लेटरल फेस जो है वो सिलेंड्रिकल है और अपर जो है वो कोनिकल है, तो हम पहले लेटरल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालेंगे, लोअर पार्ट निकालेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अपर पार्ट निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, तो ये हमारा एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया आ जाएगा। दैट इज द क्लॉथ रिक्वायर्ड टू मेक अ टेंट। कई बार सिंगल ऐसा टेंट भी होता है, जरूरी नहीं कि उसका बेस ऐसा हो। नॉर्मली ऐसे छोटे टेंट आपने देखे होंगे, वो जस्ट इस तरीके के होते हैं, तो इसमें हम केवल कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन निकालेंगे। तो ये ऐसे कॉम्बिनेशन हमारे पास ढेर सारे होंगे। एक और होता है कि कई बार एक क्यूबिकल शेप का कोई वुड है, उसमें हमें क्यूबिकल शेप को स्फेरिकल शेप में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। क्यूबिकल शेप और को ग्रेटेस्ट स्फेरिकल शेप में यदि हमें कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, यहाँ पर जो साइड ऑफ द क्यूब होगा दैट इज द डायमीटर ऑफ ए स्फीयर होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये रिलेशन आपको देखना होगा कि मैक्सिमम शेप का, मैक्सिमम साइज का यदि हमें स्फीयर कट करना है तो दैट इज द मिनिमम लेंथ ऑफ द साइड ऑफ दैट अदर ब्लॉक। तो मिनिमम अब क्यूब है तो ऑल साइड्स आर इक्वल, लेकिन यही बात जब हम क्यूबॉइड में करेंगे तो क्यूबॉइड में जो मिनिमम लेंथ होगा उस डायमीटर का हम एक स्फेरिकल शेप कट कर सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा, ये थोड़ा एक इमेजिनेशन वाला पार्ट है। तो ये डिस्कस इसलिए करना था कि आप लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ऐसे डिफरेंट सिचुएशंस आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अपन आगे करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।